आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, दैट इज खेल की बात, रेडियो टशन के साथ। इट वाज अ सुपर सैटरडे एंड 2 मैचेस वर प्लेड। One of them was Australia versus New Zealand. 2 neighbors were in front of each other, and what a match we've had. It was Australia who batted first, and they have shekels all the breaks. The record maintaining day was today. It was Australia who came out with positive intent, and they scored 118 in power play. It means in 10 overs. What a fantastic partnership it was for the first wicket of 175 with David Warner and Travis Head. He came out in his first match and hit a fantastic 100 of 59 ball. And then it was Warner who missed a very easy 100, I should say, because it was a flat pitch. Dharamsala is always a run fest, and same thing happened today. At one stage, it was looking like that Australia will go over 400. Some of the commentators were saying that they can go up to 500 as well, but a bit of a collapse was there. So Australia managed to score 388 in 50 overs. I think 2-3 balls were remaining. 49.34 overs was actually being played. And then New Zealand came out to bat with a very positive intent. They started beautifully and at least chased down the target, but it was Australia who pulled the thing beautifully, and they won that match by 5 runs. So this was the story of the first match. And if I talk about the second match of the day, that was in Eden Gardens, Calcutta, the first match of the World Cup. It was one of the biggest ground before Ahmedabad. Now Ahmedabad is the greatest stadium or biggest stadium in the world. Greatest, I should say, but it should not be used here because it's a stadium. So the biggest or largest can be used. Grammatically, I should be right. That is what has always been my motive. Now, coming back to the point. So Netherlands versus Bangladesh. One of the team was test playing nation, and other team was coming after playing qualifiers in the World Cup. Though they have done already some upsets in this World Cup, where they defeated South Africa. That was the first upset, and then another upset placed on the day. Netherlands batted first after winning the toss. At one stage, they were 4 down very early, then good partnership. Captain played Edward a fantastic knock, and somehow Netherlands managed to score 229 in complete 50 overs for the loss of 10 wicket. In reply, last ball was a ball where batsman got out. So 229 was the score, and then Bangladesh came out to bat. Wow, what a fantastic bowling by some Netherlands bowler. One of them was the star, Van Veekeren, I think is the name, who picked up 4 wickets by just giving 23 runs. And it was Netherlands who defeated Bangladesh by 87. They got dismissed 142 only on board, and it was 70 for 6, and then somehow they managed to score 142. So last 4 batsmen played well, but the top 6 were completely outplayed by the Netherlands. So that was the story of both the matches. Now once again, welcome back Mr. Ramkishan ji on the show. I spoken each and everything, and now it's up to you to describe if I forgotten anything. जी हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 2 पड़ोसी मुल्क। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की इंटेंसिटी रहती है, वही इंटेंसिटी दोनों टीमों के बीच आज देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया ने जब बल्लेबाजी करना शुरू किया ना, एक तूफान सा आया उस समय। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड दोनों जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे। किसी भी बॉलर को उन्होंने बख्शा नहीं, सबने रन दिए। सिर्फ एक ग्लेन फिलिप्स ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 10 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए, अगर मैं ठीक हूं तो
क्या लगा, सारे बॉलर्स का दिन खराब था या फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग अच्छी की? नहीं, निश्चित तौर से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शुरू से ही उन्होंने अटैक करके रखा। इसका अर्थ ये था कि बिल्कुल भी उन्होंने गेंदबाजों को दबाव डालने नहीं दिया, और इसका अर्थ ये हुआ कि गेंदबाज कहीं ना कहीं घबरा गए, और जब घबराहट में उनकी लाइन और लेंथ बिखर गई, वो सेटल नहीं हो पाए। और वहीं से आप देख लीजिए, सेंटनर ने 10 ओवर में 80 रन दिए, 10 ओवर में 67 रन दिए। मैट हेनरी ने 6 ओवर में 67, जी तो 6 ओवर में 67। हाँ, और मैं बात करूंगा तो लगभग ट्रेंट वोल्ट ने भी लगभग 10 ओवर में 55-60 रन दिए हैं, ट्रेंट वोल्ट ने भी। तो सबको मार पड़ी। फुल क्रेडिट जाता है ट्रेविस हेड को, जो उन्होंने निडर बेबाक, क्योंकि सब जानते थे, वार्नर को सब जानते थे, मिचेल मार्च को सब जानते थे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया ट्रेविस हेड का। बार बार मांग उठ रही थी कि ट्रेविस हेड को खिलाया जाना चाहिए, लेकिन आखिरकार एक हिम्मत भरा फैसला लिया कि एक सपाट विकेट पे उन्होंने एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके एक विशुद्ध ओपनर को टीम में जगह दी, और उस सलामी बल्लेबाज ने इस मैच में तो अपना काम कर ही दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले मैचों के लिए अब मुझे लगता है कि उनकी जगह लगभग पक्की सी हो गई है। जी, Last 4 matches, Australia played beautifully and they won 4 out of 4. आपको अगर याद हो, मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था ऑस्ट्रेलिया ने खराब प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन आप ये ना भूलें ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो एक हफ्ते के अंदर 4 मैचेस जीत सकती है, अगर आपको याद हो तो, और वही हुआ। निश्चित तौर से वो ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, मुझे वो ऑस्ट्रेलिया अभी भी नहीं दिख रही है। कुछ बेंचमार्क है जिनको टिक करना बाकी है, जैसे कि आप 388 रन बनाने के बाद भी यदि आप केवल 5 रन से मैच जीत रहे हैं, यदि आप अंतिम ओवर में मैच जीत रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी में समस्या है, और मुझे लगता है जिस पे काम करने की आवश्यकता है। और मिचेल स्टार्क के बारे में बात करूंगा, बहुत रन दिए उन्होंने आज, 70 प्लस शायद रन दिए होंगे आज, काफी रन दिए मिचेल स्टार्क ने, लेकिन लास्ट ओवर भी उन्होंने किया, वो अलग मसला है कि उन्होंने रन बचा लिए। एक ओवर में 19 रन, हालांकि बहुत रन होते हैं, एक ओवर में 19 रन बहुत होते हैं, लेकिन वो स्टार्क ने फिर भी कहा जाएगा बचा लिए वो रन। 2 गेंदों में 7 चाहिए थे, लेकिन वो आउट हो गए जिमी नीशम, और वहां से मैच में न्यूजीलैंड पिछड़ सा गया। फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया की, निसंदेह 2-2 रन दिए, वहां 4-4 रन होने चाहिए थे, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब डाइविंग एफर्ट। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस से उतना खुश नहीं हूँ। ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं लगी, ये वो चैंपियन टीम मुझे अभी भी नहीं लग रही कि जो अजीय चैंपियन टीम हो। ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रही जो ऑस्ट्रेलिया चढ़ के खेलती है, दूसरों पे दबाव डालती है और गिर के उठना जानती है। ये वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी काफी बेंचमार्क्स हैं जिनको टिक करना बाकी है। जैसे ही आउट हुए नीशम, वैसे ही छाया न्यूजीलैंड के खेमे में गम। ये आप एक लाइन कह सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे बल्लेबाज थे जो मैच को पलट सकते थे। 2 गेंदों में 7 रन संभव थे, अगर वो एक छक्का मार देते उसके बाद मैच टाई हो जाता, लेकिन वो बॉल ठीक से बल्ले पर आई नहीं और वो आउट हो बीच में कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर भी वो रन के लिए भागे और अंत में उन्हें रन आउट होना पड़ा। अगर वो रन आउट नहीं भी होते तब भी शायद आखिरी बॉल पे कुछ होता नहीं, क्योंकि 1 रन लेकर ही वो दूसरा रन पूरा कर रहे थे, शायद स्ट्राइकर की तरफ वापस जा रहे थे वो, तब आउट हुए थे, अगर मैं ठीक हूं तो। याद आया मुझे, यही कुछ हुआ था। खैर, इंग्लैंड और भारत का मैच है, कल उस पर आऊंगा। न्यूजीलैंड से कहां चूक हो गई? आपको लगा नहीं कि यार क्रिकेट तो उन्होंने अच्छी खेली? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा,
न्यूजीलैंड ने जब 2 ओवर में न्यूजीलैंड को 32 रन चाहिए थे, वहां पे मैच बिल्कुल पहुंच में था। छक्का लगाया ट्रेंट वोल्ट ने। रन चाहिए थे आपको कितने? 26 11 में। उसके बाद बड़ी बॉलें जाया करती। नहीं, फिर उसके बाद 8 में 25 चाहिए थे। सॉरी 8 में नहीं, 10 में 10 में बिल्कुल। फिर 2 रन लिए, 9 में 23 चाहिए थे, फिर चौका लगा, 8 में 19 चाहिए थे। जो 2 गेंदें वहां जाया हुई, मुझे लगता है वहां पे थोड़ी सी चूक हुई जिमी नीशम से। और दूसरी चीज ये कि जो 1 ओवर में 19 रन होते हैं ना, और आपके पास मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, पैट कमिंस या बुमराह, शामी, ये कुछ अच्छे गेंदबाज जो दुनिया में हैं, यदि वो ओवर वो डालते हैं तो भले कितना भी दिन खराब हो, मगर 19-20 रन बहुत रन होते हैं 1 ओवर के हिसाब से। और ऐसे समय जब आपके साथ एक पुछल्ले क्रम का बल्लेबाज आपके साथ खेल रहा हो, तो गेम चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास दबाव ज्यादा होता है, और होगा ऐसा। हालांकि गेंद खराब फेंकी, 5 रन दिए, लेकिन कुछ मिचेल स्टार्क ने मेहनत की और साथ में फील्डर्स का साथ मिला, और जो 13 रन चाहिए थे 5 गेंदों में, वहां से वो 2 रन आए, फिर 2 रन आए, फिर 2 रन आए। तो 3 दुक्के आए, संभवतः 3 चौके तो मैं नहीं कहूंगा, मगर वो 2 चौके निश्चित चौके थे जो होने चाहिए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सूझबूझ भरी फील्डिंग, कुछ डाइविंग एफर्ट्स के जरिए जो क्षेत्र रक्षण अंतिम क्षणों में हुआ, उसने बाजी को पलट दिया। लेकिन सही मायने में वो जो 2 गेंदें थी 49वें ओवर की, मेरे हिसाब से मैच में निर्णायक साबित वही गेंदें हुई। मुझे लगता है एक जो ओवर फेंका था न्यूजीलैंड के जिमी नीशम ही थे, उन्होंने 27 रन दिए थे उस ओवर में। वो भी शायद मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के हक में गया, और उस ओवर को भी आप कई बार अगर नजरअंदाज करेंगे तो ठीक नहीं होगा, कसूरवार उस ओवर को भी माना जा सकता है। बहरहाल ये तो रही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच की बात। और अच्छा, न्यूजीलैंड के एक प्लेयर है रचिन रविंद्रा, व्हाट अ प्लेयर ही इज। He again played a fantastic knock of 100 and what run he scored, I'm not really confirmed, but he got another 100 in the World Cup. So that is his class. Fantastic piece of batting, good display of technique, very good temperament, good application, good composer. तो आप कुछ भी कह लें, सब कम है। Fantastic player to watch out. हाँ, देखिए, यदि न्यूजीलैंड को कोई व्यक्ति इस गेम में लेकर आया था तो वो रचिन रविंद्रा थे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये किया वो किया, और सारी चीजें ठीक है। एक समय 72 पे 2 हो गए थे, उसके बाद वो साझेदारी डेरिल मिचेल और रविंद्रा के बीच की वो साझेदारी, वहां पे डेरिल मिचेल ने कुछ रिस्क लिए, रविंद्रा ने आराम से खेला। फिर जैसे ही मिचेल आउट हुए, वैसे वो रविंद्रा के साथ लेथम की साझेदारी, उसके बाद वो कुछ ग्लेन फिलिप्स की साझेदारी, छोटी छोटी साझेदारियां हुई, लेकिन वो क्रीज उन्होंने नहीं छोड़ी। और रचिन रविंद्रा का इस विश्व कप का दूसरा शतक, विश्व कप में उनका डेब्यू है, यानी पहला विश्व कप, मेडन विश्व कप हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है यदि किसी ने गेम बनाया है तो वो रचिन रविंद्रा है। और बस यही है कि थोड़ी सी चूक हो गई, अदरवाइज। और केन विलियमसन भी बहुत व्यस्त दिखे, खूब उन्होंने अपनी तरफ से इंटरेस्ट लिया, खूब मेहनत की, और कहीं ना कहीं इन लड़कों को मोटिवेट करने का जो श्रेय जाता है वो मैं मानता हूँ केन विलियमसन को। भले वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, बट उन्होंने वहां जाके मोटिवेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मैं कहता हूँ यदि इस टूर्नामेंट में और डिकॉक ने 3 शतक लगाए हैं, तो ये ना भूलिएगा रचिन रविंद्रा ने भी 2 शतक लगाए जी। 116 रन, 89 गेंदें, 9 चौके और 5 छक्के, ये था रचिन रविंद्रा का स्कोर। और इनको आने वाले समय में लोग कई खिलाड़ियों से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि नए नए प्लेयर हैं, 23 साल के युवा हैं। लेकिन कंपोजर अच्छा दिखाया उन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी, और उसके बाद निशम की वो शानदार इनिंग, लेकिन जीत के दहलीज पर
लाकर छोड़ी तो दिया न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी मैच अच्छा था, मैच बड़ा रोमांचक था, नो डाउट। हाँ, नीदरलैंड और बांग्लादेश के मैच पर आऊं तो वो एक तरफा मैच लगा, क्योंकि बांग्लादेश जैसे पत्तों की तरह बिखरी, 55 पर 3 होने के बाद 70 पर आते आते 6 हो गए, उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। हम और आप ऑफलाइन तब बातचीत कर रहे थे और इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि शो तब करें जब मैच खत्म हो जाए। तो फाइनली मैच खत्म हुआ और 87 रन से बड़ी जीत। नीदरलैंड के बारे में आप ये कह सकते हैं अब कि वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आए हैं कि चलो किसी से जीत लिए तो जीत लिए वरना कोई बात नहीं। दे आर हियर टू कम्पीट, एक्चुअली दे आर कम्पीटिंग नाउ, यू नो। और उनके कप्तान बड़ी अच्छी लय में है, 15वां अर्धशतक लगा दिया उन्होंने आज। देखिए, ये बांग्लादेश से मैच जीती है या अफ्रीका से जीती है, तब मैं नीदरलैंड की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जब से नीदरलैंड ने क्वालिफायर खेले थे, मैं तारीफ तब से कर रहा हूँ। वास्तव में नीदरलैंड कभी भी अपने आप को केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नहीं आई। नीदरलैंड अपने आप को वहां स्थापित करने आई है। नीदरलैंड प्रतिस्पर्धा करने आई है। नीदरलैंड अपनी बादशाहत को, जो उन्होंने क्वालिफायर में बादशाहत साबित की है, उस बादशाहत को यहाँ पे जताने आई है कि यदि आपके अंदर दम है तो आप आइए, हमसे टकराइए। हम हार जाएंगे मगर मैच खेल के हारेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। और इसका नमूना भी उन्होंने दिया। आज बहुत जल्दी 4 विकेट हो गए, आपने वो बात की, और ये कोई आज की कहानी नहीं है। हाँ। ये इस पूरे विश्व कप की कहानी है। 4-5 विकेट यदि हो जाते हैं तो भी, जैसे एक मैच में 6 विकेट हो गए थे, लेकिन उसमें वो 71 रन की वो साझेदारी, श्रीलंका से मैच था वो पारी। हाँ, हारे या जीते सवाल ये नहीं है, लेकिन वो जो जज्बा होना चाहिए, जो जुझारूपन है, जो कप्तान में एक इच्छा शक्ति, जो एक जीतने का जज्बा, एक जीतने की ललक होनी चाहिए कि नहीं, हमें जाना है तो कम से कम स्पर्धा करनी है, हथियार नहीं डालने। वो सब कुछ नीदरलैंड में है। और बांग्लादेश, नीदरलैंड, अफगानिस्तान, ये तीन टीमें लगभग बराबर की हैं। और मैंने बांग्लादेश का मैच भी देख लिया अफगानिस्तान से, बांग्लादेश का नीदरलैंड से भी देख लिया। अब एक मैच में अफगानिस्तान और नीदरलैंड का देखना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग होगा वो। बड़ी मेरी उत्कंठा है, क्योंकि बांग्लादेश को अफगानिस्तान से जीत मिली और बांग्लादेश को नीदरलैंड से हार मिली। अब देखते हैं नीदरलैंड और अफगानिस्तान में कौन जीतेगा। निसंदेह बड़ा अच्छा मुकाम उन्होंने अपना बनाया है। लोग भले इसको अपसेट ना कहें, मैं कहूंगा क्यों। 2-3 कारण है। पहला कारण है अपसेट कहने का, नीदरलैंड एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, यानी टेस्ट खेलने का दर्जा उनके पास है। नंबर 2, बांग्लादेश के पास, बिल्कुल। हाँ, बांग्लादेश के पास कई विश्व कप में बांग्लादेश शिरकत करती चली आ रही है। और एक और कारण है कि बांग्लादेश को, जो मैं कहूंगा कि ये जो हुआ बांग्लादेश हारा, एक अपसेट है। वो ये कारण है कि क्वालिफाई फेस करके कहीं ना कहीं टीम आई है नीदरलैंड की, और वहां पे भी उन्होंने बड़ी टीमों को बाहर किया है। वेस्ट इंडीज क्रैश आउट करने वाला था, जो 373 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने, उसको चेज किया था, जिसमें एडवर्ड की भूमिका थी। तो ऐसे ही लोग ये कहेंगे तुक्का लग गया, ऐसे ही वेस्ट इंडीज को बाहर नहीं किया उन्होंने। जो काम वेस्ट इंडीज करती है, उन कामों को भी नीदरलैंड करेगी, चौंकिएगा नहीं आप। Now coming back to the match, India versus England, which will be played today. I said because it's close to 12 o'clock. If not right now, it will be within a minute or so. जी बच गया है। Yes. So today the match will be played at 2 p.m. in the afternoon at Ikana Stadium, Lucknow, the capital of UP, where the pitch has no idea what it's going to offer itself. So England is in
tremendous amount of pressure, as you know. India is coming out of such a form where they have won 5 out of 5, if I'm correct. 5 games, 5 win for India. Kohli is in good touch. Rohit Sharma playing a fantastic knocks up front, leading from front. He is playing responsible cricket as well. Not to forget, whenever you will bowl short balls, it will be sent out of the ground. So India versus England, who you think is going to win the match? हाँ, निश्चित तौर से आपने कहा है कि आप क्या सोचते हैं इस मैच पे, तो जीतेगा कौन ये भी बताना। अच्छा, इंडिया इंग्लैंड का मैच होगा। तो लखनऊ में मैच है, कुलदीप का जादू चलेगा, आप लोग हैरान ना होइएगा। हाँ, ये एक प्रश्न है, हार्दिक की जगह क्या सूर्य कुमार भी खेलेंगे, क्या आप शामी, सिराज, बुमराह तीनों के साथ जाएंगे, क्योंकि शार्दुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि हार्दिक कुछ ओवर डाल देते थे तो वो मेकअप हो जाता था, और हार्दिक नहीं है तो हमें एक विशुद्ध गेंदबाज के साथ जाना, ये कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है, या यूं कहें पिछले मैच में 5 विकेट ले लिए हैं शामी ने, तो शायद अब रोहित शर्मा अपने रास्ते बंद नहीं कर सकते शामी के। मुझे लगता है अगर अक्षर आ गए हों, क्योंकि रिप्लेसमेंट का ऐलान हो गया है, अक्षर पटेल शायद आएंगे हार्दिक की जगह। अगर अक्षर आ जाएं तब तो अक्षर खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा कि एक मैच में और सूर्य कुमार को मौका दिया जाए, शामी, सिराज और बुमराह के साथ जाएं हम, तो हमारे लिए बेहतर होगा। और इंडिया इंग्लैंड में कौन जीतेगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया का पलड़ा भारी है। 70-30 का मैच है, 70 या 30। इंग्लैंड के पास कुछ खोने को दरअसल है नहीं, उनके पास जो भी है वो पाने को है, तो उनका कुछ जाएगा नहीं, भारत पे कुछ बचेगा नहीं, इसलिए भारत को सावधानी से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लखनऊ से वापस होंगे, लखनऊ इंग्लैंड के लिए भी शायद नया होगा, ज्यादा मैचेस खेले नहीं है वहां पे उन्होंने, तो अभी नया मैदान है तो सबके लिए ऐसे ही है, वहां कुछ ज्यादा होता हुआ नजर भी नहीं आता। कई बार शाम को चेज करना वहां थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी, और ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि विराट कोहली के ऊपर इतना प्रेशर है इस समय, तो वो उस पर फोकस ना करें कि उनको 49वां शतक लगाना है, क्योंकि जगह जगह से आवाज ये उठ रही 49, बट अगेन आई जस्ट थिंक विराट कोहली नीड्स टू बी वेरी पेशेंट, वेरी फोकस्ड, कंपोज्ड एंड काम, otherwise it can be soft dismissals as well in pressure। कई बार सिचुएशंस आती हैं ऐसी, तो मुझे लगता है अब भारतीयों की ये बड़ी खराब आदत है कि हो सकता है हर देश के लोगों की हो, कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता है तो, बट कई बार उसको इन चीजों से फर्क भी पड़ता है। हालांकि कोहली शायद इस तरह के आदमी नहीं है, उनको इन चीजों का बहुत मतलब होता नहीं है। वो हमेशा कहते हैं मैं मीडिया वगैरह बहुत कम फॉलो करता हूँ, सोशल मीडिया हो या फिर ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ भी, तो वो शायद एक फैक्टर उतना महत्वपूर्ण रोल ना प्ले करे। बट अगेन इंग्लैंड के पास देखो पाने को तो कुछ है नहीं और ना खोने को है। पाना तो सिर्फ उनको इतना ही है कि वो अपने प्राइड के लिए खेलेंगे और मैच में जीत गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ हो तो सकता नहीं है। पाकिस्तान भी लगभग उसी कंडीशन में जाती नजर आ रही है। तो क्या लगता है, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर और कोई नजर आ रहा है अभी आपको? अभी कह नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया कदम बढ़ा रहा है, लेकिन लंका हमारी एशिया की टीम है, तो आई होप एक एशियन होने के नाते मैं चाहूंगा अभी, और लंका के पास समय भी है, तो लंका कुछ चमत्कार कर सकती है, टक्कर दे सकती है। बाकी ऑस्ट्रेलिया लंका में कोई भी पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप देख के बता पाए तो बताइएगा, अन्यथा कोई अनिवार्य नहीं है। और अफ्रीका का मैच था बीते दिन जो पाकिस्तान से वो जीते हैं, उसमें डिकॉक ने कितने रन बनाए थे? अच्छा, डिकॉक पहले नंबर पर है और डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिकॉक ने कितने रन बनाए थे, क्योंकि
यदि कल की पारी को हम छोड़ दें तो विराट कोहली से महज 54 रन आगे थे क्विंटन डी कॉक। विराट कोहली के 354 रन थे और ये भी ध्यान रहे कि विराट कोहली 2 बार नॉट आउट रहे हैं। 354 रन उन्होंने बनाए हैं 5 मैचों में। वहीं रोहित शर्मा ने 310 रन बनाए हैं। तो ये मैं जानने का उत्सुक था कि डिकॉक ने कल कितने रन बनाए थे। कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन हम तब तक चर्चा जारी रखते हैं। तब तक मैं उसको कैरी ऑन रखता हूँ कि कल एक मैच बीते दिन भी खेला गया था, उसकी हमने चर्चा नहीं की तब तक। वो बीते दिन जो मैच खेला गया था वो पाकिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का था ना। उन्हीं का मैच था। उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने ठीक ठाक रन बना लिए थे पाकिस्तान ने। कितने रन बनाए थे पाकिस्तान ने? असल में कई घंटे जब बीत जाते ना, बड़ा मुश्किल होता है याद रख पाना। मैच देखा गया था, मैच पूरा देखा गया। अफ्रीका ने चेज बड़े अच्छे से तो नहीं किया क्योंकि वो हमेशा फंसते हैं। एक विकेट से मैच जीता था। और जहां तक मुझे याद है पाकिस्तान ने कल के मैच में 270 के आसपास रन बनाए थे। 271 का शायद पीछा कर रही थी। बिल्कुल सही 270 बनाए थे उन्होंने। वो भी जस्ट गिरते पड़ते बनाए थे क्योंकि एक समय बहुत जल्दी उन्होंने 5 विकेट खो दिए थे। बिल्कुल। उसके बाद कुछ साझेदारियां हुई। शादाब ने 43 किए, साउथ शकील ने भी 40 प्लस की पारी की। बाबर आजम ने 50 किए, साउथ शकील ने 52 बनाए। तो 52 बनाए सबके सहयोग से। और 2 पारियां वो आप ना भूले, इफ्तिखार और एक और उनके बैट्समैन थे। नहीं, इफ्तिखार तो जल्दी आउट हुए। नवाज और शादाब शायद थे 40 बनाए। वही कह रहा हूँ, शादाब ने 43 बनाए थे और नवाज ने भी आई थिंक 30 रन किए थे। वो कुल मिला के 200 सहयोग से रन बना लिए थे। रन बने, पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए थे और वही आड़े आई समस्या। और अफ्रीका जब चेज करने निकला तो कुछ राशि बंडारडसन अंपायर कॉल पे आउट हुए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था वो। आउट थे नहीं थे वे तो डिबेट का विषय है। खैर, माकरम ने एक तरफ से खड़े होकर 91 की पारी खेली, लेकिन बीच मझधार में छोड़ के चले गए। जब 21 रन चाहिए थे वहां पे 7वां विकेट गिरा और वहां से पाकिस्तान मैच में वापस आया। फिर शाहीन ने एक और विकेट लिया और कोवेंसी को पवेलियन भेजा, जोरेल कोवेंसी। और उसके बाद फिर एक और विकेट हैरिस रॉफ ने कॉटन बोल्ड किया, इंगिडी को आई थिंक किया वो। तो फिर 11 रन चाहिए थे, 1 विकेट हाथ में था। लास्ट में महाराज ने चौका लगा के दक्षिण अफ्रीका को वो विजयी घोषित करवाने में अपनी बहुमूल्य भूमिका निभाई। तबरेज शमशी ने 4 विकेट लिए दक्षिण अफ्रीका की तरफ से और उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। तो डिकॉक 24 रन बनाए थे। 24 जी। तो डिकॉक ने 24 रन बनाया 14 गेंदों में। अच्छा, तो बिल्कुल, यानी इसका मतलब है जो डिकॉक है उनके 432 रन हो गए हैं और विराट कोहली के 354 रन। यानी 46 प्लस 32 4 प्लस 28 यानी कि 88 रन के आसपास। 78 सॉरी जी, 78 रन के आसपास। यानी विराट कोहली को आगे निकलना है तो शतक मारना पड़ेगा। और एक और बड़ी अजीब सी बात है, मैं बताना जरूर चाहूंगा। कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा है कि विराट कोहली जो फाइनल है जो है वो फाइनल में शतक मारेंगे विराट कोहली, वो उनका 50वां शतक होगा। मुझे लगता है फाइनल में विराट कोहली कभी अच्छा खेले नहीं है
तो ये शायद थोड़ा सा हाँ, हो सकता है उसको सुधार लें तो अलग बात है, बट विराट कोहली ने कभी फाइनल्स में आपने देखा होगा बड़ी अच्छी पारियां नहीं खेली उन्होंने, तो ये भी एक विषय है। ये आपने सबकी धड़कन बढ़ाने वाला एक स्टैट दे दिया है। और अच्छा, रोहित शर्मा भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। पहले मैच में 0 किया, फिर 131 किए अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर एक मैच में 84 गेंदों में 100 रन किए, और एक मैच में 40 गेंदों में 48 और एक मैच में 40 गेंदों में 46 रन किए। तो ये 5 पारियां हैं उनकी, यानी 46, 48, 100, 131 है ना, और 0। हाँ 0। तो इसका मतलब 2 शतक लगा दिए उन्होंने भी इस टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और विराट कोहली पीछे है उनसे। विराट कोहली की यदि 5 पारियों की बात करूंगा मैं, तो पहली पारी में उन्होंने पहला मैच था उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बनाए थे 85 रन, राइट। और एक मैच में उन्होंने बनाए थे 95, एक में 55, और एक मैच में 16, और एक मैच में 103 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, मुझे लगता है काफी चर्चा हो चुकी है। आप क्या क्या कहते हैं इंडिया इंग्लैंड के? आई थिंक इंडिया इज फेवरेट। आई थिंक मैं आपके साथ ही जाऊंगा 70-30, क्योंकि इंग्लैंड के पास मैंने पहले कहा ना, देखो खोने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, जो है सो पाने के लिए ही है। तो वो ट्राई करेंगे कि कुछ उल्टा पल्टा खेला जाए, और कई बार वो सक्सेसफुल भी होते हैं बेसबॉल क्रिकेट में। हो सकता है 350 रन मार दे तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। तो ये है। तो बटलर, जो है वो क्या ट्राई कर सकते हैं ओपन में आने के लिए? आना चाहिए। अब नहीं तो कभी नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ, बटलर आए ओपन में, रूट आए 3 पे, मलान आए 4 पे, या मलान 3 पे, रूट 4 पे। हाँ, फिर स्टोक्स वगैरह है उनके पास। वहीं पे लिविंगस्टन 5 पे आने चाहिए, स्टोक्स 6 पे, मोइन अली 7 पे, राइट। ये सही कॉम्बिनेशन होगा। या फिर एक मूव हो सकता है कि रूट को थोड़ा नीचे खिसका दिया जाए, या मैं कहता हूँ अगर बटलर नहीं आना चाहते ओपन में, तो मलान को ओपन करा के मोइन अली को एक बार ट्राई कर लिया जाए, एक फ्लूटर की तरह, नंबर 3 डाउन। हाँ बिल्कुल, चेन्नई अक्सर करता है। कर सकते, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ना, तो कर सकते हैं। ये सारी चीजें, मुझे लगता है इस वक्त में काफी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब दीजिए हम दोनों को इजाजत, मिलेंगे फिर अगले सेगमेंट में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। तो नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।